طلبہ و طالبات کا ہی سایہ ہے کہ یہ پروگرام ہم کرنے میں کامیاب. ڈاکٹر اسرار میر صاحب سے گزارش ہے آپ عارف کاظمی صاحب کو بک کے پیش کریں. عام پر آ چکی ہیں جن میں قلم و کرتاس، لوح و قلم، شعلے اور شرارے، روح الامین، دانائے راز وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں. میں نے جس تصنیف کے حوالے سے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھنے کی جسارت کی ہے وہ حرف حرف جوئے خون سفر سعید ہے. یہ دراصل حج و عمرے کے مقدس سفر کی ایک ایسی داستان ہے جو عقیدت، محبت، روحانی سرور اور ایمان افروزی سے بھرپور ہے. بقول صوفی محمد اعظم ساگر کہ حرف حرف جوئے خون ہجر کی آگ میں جلس جلس کر وصل کی لذتوں سے متلذذ ہونے کی ایک داستان دلربا بھی ہے اور شائقین کے دل و دماغ میں غصہ قوتوں کو بیدار کرنے کے لیے بانگے درا بھی. حرف حرف جوئے خون اپنی جگہ بجا سکی، حرف حرف جوئے خون اپنی جگہ بجا سکی، مگر لفظ لفظ دریائے محبت، جملہ جملہ بحر عشق کے مترادف ہے. اس لیے کہ ایک سچے اور مقبول عاشق رسول کی زبان ہی ایسے کلمات کو جنم دے سکتی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ عزت و بزرگی، جلالت و عظمت والا ایک ایسا مقدس شہر ہے جس کی قسمیں رب ذوالجلال نے اپنے مقدس کلام میں اٹھائیں، جس سے رب ذوالجلال نے بلد الحرام کے نام سے پکارا. وہ شہر کہ جس میں محبت وحی کی پرانوار فضائیں دیکھی ہوں، اور اس شہر کی عظمت و تقدس کی کیا کہنے کہ جہاں وہ خانہ خدا ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للناس، کہ بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ بابرکت اور انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. وہ بیت اللہ کہ جہاں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، جہاں کی حاضری ہر کلمہ گو مسلمان اپنے ایمان کا جز اور اپنی نجات کا سامان سمجھتا ہے. اس خانہ خدا میں جب کسی خوش نصیب کی حاضری ہوتی ہے تو وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی. بقول شورش کاشمیری کہ خانہ کعبہ میں حاضر ہو کر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے منطق کی تمام ادائیں بھی اس کو محصور نہیں کر سکتی. اس سحر و سرور میں فصاحت و بلاغت بے بس ہو جاتی ہے. یہ وہ سرحد ہے جہاں الفاظ و معنی اپنا سفر ختم کر دیتے ہیں. وہ لمحہ جب ایک زائر کعبۃ اللہ کو پہلی بار دیکھتا ہے، اس کیفیت کو شاعر نے کچھ اس طرح بیان کیا کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا. اور جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا. اور قریشی صاحب نے اپنے اس سفر نامے میں کعبۃ اللہ پر اپنی حاضری کو انتہائی جذباتی اور روحانی انداز میں بیان کیا ہے. لرزتے لب، آبدیدہ آنکھیں، دعا کی قبولیت کا احساس، اللہ کے گھر کی ہیبت و جمال کو ایسے پیش کیا گیا ہے کہ قاری خود کو وہاں محسوس کرتا ہے. ملاحظہ کیجئے، لکھتے ہیں حرم پاک کی جانب اٹھتے قدم احساس گناہ کی وجہ سے منو بوجھل محسوس ہو رہے تھے. ایک مجرم کی طرح سارا جسم لرزاں تھا، اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے نہ جانے کیوں کر آگے بڑھ رہے تھے. مزید لکھتے ہیں کہ بحر کیف قریب 1 بجے کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے. ایسا لگا جیسے وقت ہمارے لیے رک سا گیا ہو، جیسے نصیبہ سنور گیا، جیسے ارمان نکل گئے، جیسے نخل تمنا ہرا ہو گیا، جیسے دل کی مراد بھر آئی، جیسے پروردگار کا فضل و کرم جوبن پر آ گیا، جیسے میرے خالق و مالک نے مجھے معاف کر دیا، اور جیسے یہ لمحے زندگی کی سب سے جامع دعا کا تقاضا کر رہے ہوں کہ یہ قبول دعا کا وقت ہے. میری آنکھوں میں آنسو تھے، آنسو کی برسات تھی. یہ آنسو ندامت کے آنسو بھی تھے اور خوشی کے بھی. میرا دل بوجھل تھا اور ہلکا بھی. میں نے پڑھا تھا اور سن رکھا تھا کہ بیت اللہ شریف پر پہلی نگاہ پڑھتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ بے شک قبول ہوتی ہے. اس لیے پہلے تو میں نے اپنا چشمہ اتار لیا کہ ماتھے کی ننگی آنکھوں سے کعبۃ اللہ کا دیدار کروں، اور پھر نگاہ ڈالتے ہی میری زبان پر وہ دعائیہ کلمات آئے کہ جن سے بڑھ کے میں کچھ مانگنا نہ چاہتا تھا. میں نے مانگا
मेरे परवरदिगार और रब काबा मुझसे राजी हो जाए। सर जबीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मुकाला अपना जो है लेकर हाजिर हों, और कोशिश ये है कि उनकी रहेगी, क्योंकि वो होस्ट भी हैं, तसर हो ताकि ज़्यादा वक्त हम अपने मेहमानों को दे पाएँ। हमारे कायद होते हैं, उनकी कीमत और कदर हमारे पास है और हमेशा करते हैं। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से मैं मुतमईन हुआ हूँ, देख के खुशी हुई जब जबीन जी इन्होंने मुझे फ़ोन किया स्पेशल। मैं सुरनकोट डिग्री कॉलेज में इनके पास भी मैं अक्सर जाता रहता हूँ। आपको भी सुनूँ, तालीम के साथ में तरबियत की बहुत ज़रूरत है जो हमसे निकल गई। लिबास के साथ किरदार की बड़ी ज़रूरत है जो हमसे छूट गया। नियमतें अल्लाह ने दे दी, शुक्र करना हम भूल गए। 3 चीज़ें हमारे सोसाइटी समाज से निकल चुकी है, जिसके ऊपर हमें गौर और फिक्र करना चाहिए। और आज का ये मैसेज जो है ये इस एतबार से जाना चाहिए। 2 दिन पहले हम सुरनकोट में थे, जहांगीर मीर साहब भी थे, नूरी साहब भी थे, और बहुत डिपार्टमेंट एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सीधे जुम करने के लिए, उसके बाद सदर में गुजर गया, खाना खाने तक मैसर नहीं था। आज मीर तक की मीर पढ़ा के हम 2-2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। ये अदीब और राइटर की देन है जो हम लोगों को दी है। बहरहाल प्रोग्राम इतना सीरियस हो गया, मैं समझता था कि प्रोग्राम थोड़ा हंसने हंसाने वाला हो, मजाक वाला हो। कृषि साहब बड़े हंसमुख भी रहे हैं। इस अरसे में मेरे गुरु जी यहाँ आए, प्रोफेसर जी आर शर्मा साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। कृषि साहब के फर्जंद जनाब डॉक्टर खलील अंजम साहब दूसरी रोड में बैठे हैं, इनको भी वेलकम करते हैं कि ये इस हमारे प्रोग्राम में आ गए हैं। डॉक्टर लियाकत मीर साहब बारागुलाम साहब यूनिवर्सिटी में सदर शोभा उर्दू हैं। हमारी गुजरा लिखा है, आज ही सफर करके आ रहे हैं, इसी कॉलेज से पढ़े हैं। मैं लियाकत साहब बाखुद एक अच्छे शायर हैं, पहाड़ी और उर्दू दोनों जुबानों में लिखते हैं, बल्कि गोजरी में भी लिखते हैं। ऑलराउंडर शख्सियत है। अब तो तहकीकी और तनकीदी मकालाजात भी लिखे जा रहे हैं, मकाला मुख्तसर हो जाएगा। आप तशरीफ ले आए। As a guiding light for all of us, and he should become a bridge between younger generation and the older one, so that we from his life, his writings, whatever it. Thank you so much for inviting me. थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा होने जा रहा है और एहसान बना लेता है। इस और इनकी जो खिदमत हैं वो कॉलेज के बच्चों तक, हमारे आने वाली जो जनरेशन है उन तक एक मैसेज को किस तरह से हम पहुंचाएं ताकि एक मिसल राह जो है ये बन सके। मैं सर आपका खुशामदीद कहता हूँ दिल की उम्मीद गहराइयों से कि आप इस उम्र में भी आपके अंदर वो जोश है, वो जज्बा है, वो हिम्मत है जो बहुत कम लोगों के अंदर रौनक बने। आपको दिल की उम्मीद गहराइयों से मैं स्टाफ की तरफ से, कॉलेज की तरफ से और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से आपका वेलकम करता हूँ, आपका खुशामदीद कहता हूँ। हमारे बीच में खातिन हज़रात, जनाब नज़ीर कैशी साहब, डॉक्टर जसवीर सिंह साहब, जमीर हुसैन मीर साहब, अनवरी साहब, आरिफ काज़मी साहब, HOD केमिस्ट्री SKDGC पुंछ जनाब प्रोफेसर असदुल्ला खान साहब। मेरा नाम डॉक्टर मसरत जबीन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज डिग्री कॉलेज पुंछ में सेमिनार करवाया गया? आज शोबा अरबी और लिटरेरी एक्टिविटीज़ कमेटी और सर सैयद एजुकेशन मिशन के बाहमी इश्तराक से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। वो इलाके की एक नामवर इल्मी और अदबी हस्ती जनाब नज़ीर हुसैन कुरैशी साहब की हयात और उनकी अदबी खदमात पर है, और जिसका मकसद नई नस्ल को
नई नस्ल को अपने बुज़ुर्गों के इल्मी और अदबी कारनामों से रोशनास करवाना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज डिग्री कॉलेज पुंछ में सेमिनार करवाया जा रहा है। देखिए, डिग्री कॉलेज पुंछ में आज डिग्री कॉलेज पुंछ और सोच इंडिया सर सैयद एजुकेशन मिशन के तावन से आज पुंछ की एक अदबी और इल्मी शख्सियत जनाब नज़ीर हुसैन कुरैशी साहब, जो मेरे वालिद मोहतरम हैं, उनके हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जो उनकी अदबी और इल्मी खिदमात हैं उनका एतराफ़ करते हुए मैं शुक्रगुज़ार हूँ डिग्री कॉलेज पुंछ के प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर जसबीर सिंह साहब का, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक के हेड डॉक्टर मसरत जबीन साहिबा का, उसके साथ साथ यहाँ पे सोच इंडिया सरफराज मीर साहब का, चेयरमैन सर सैयद एजुकेशन मिशन, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये इनेकाद किया, ताकि जो हमारे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने लिखा और जिन्होंने जो तकरीर और तहरीर में अपना एक मकाम रखते हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें भी तसनीफ़ की हैं, जो इल्म का एक समंदर है, उनके तजर्बात जो हैं वो नई नस्ल तक पहुँचाए जाएँ। मैं इस सिलसिले में ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि उनकी जितनी भी रिटायरमेंट के बाद भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहते हुए भी उन्होंने जो खिदमत अंजाम की है वो नई नस्ल तक इसी तरह पहुँच सकती है। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का। मैं डॉक्टर अमजद अली बाबर हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज डिग्री कॉलेज पुंछ में सेमिनार करवाया गया है। आज जो है ये नज़ीर कुरैशी साहब एक बहुत बड़े अदीब हैं, हमारे खिता पीर पंचाल के, सोनकोट से इनका ताल्लुक़ है। उनकी उम्र लगभग, पहले मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 90 साल के आसपास इसकी उम्र है और ये कमाल के लिखाई रहे हैं। इन्होंने तहक़ीक़ी मज़ामीन लिखे हैं, इन्होंने अखबार के लिए लिखा है, इन्होंने तनकीदी मज़ामीन लिखे हैं और लगभग इनकी 7-8 किताबें जो हैं उनसे यहाँ पे आ चुकी हैं। और ये हमारे कॉलेज डिग्री कॉलेज पुंछ को ये एजाज़ हासिल हो रहा है। हमारी लिटरेरी कमेटी और अदबी डिपार्टमेंट और सर सैयद एजुकेशन मिशन मिलकर ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जिसमें इनके काम पे कुछ मकाले पढ़े जा रहे हैं और कुछ इनके ऐसे हम असर हमने बुलाए हैं जो अपने तासरात इनके अदब के हवाले से, इनके हवाले से रखने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट संजय रैना जी। सर बताएंगे, आज डिग्री कॉलेज पुंछ में सेमिनार करवाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज डिग्री कॉलेज पुंछ में आया जा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियत को दावत दी गई है और इस सेमिनार के जो फोकल पॉइंट हैं वो श्री नज़ीर हुसैन कुरैशी साहब हैं, जो साबका उस्ताद रहे हैं। हमारी पुंछ की इस धरती के, पीर पंचाल की इस धरती के एक लीजेंडरी फिगर हैं। वो एक लिटरेरी जाइंट है, ना कि लिटरेरी जाइंट है, एक विजनरी व्यक्ति जिन्होंने अपने समाज के लिए हर पहलू में, चाहे वो सियासी पहलू हो, समाजी पहलू हो, पढ़ाने की जहाँ तक बात हो वो पहलू हो, हर तरफ से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। उनकी जो लिटरेचर जो उन्होंने लिखा है, उनके कंट्रीब्यूशन की आज जो यहाँ पर सराहना की जा रही है, जिसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है पुंछ के समाज द्वारा, और जो उनकी खिदमात है हमारे इस पीर पंचाल के रीजन के लिए, उस सारी चीज़ों को जो है आज यहाँ इस सेमिनार में जो वो हाईलाइट किया जाएगा। कुरैशी साहब एक जीती जागती हमारी नई जनरेशन के लिए एक मिसाल है कि एक व्यक्ति जो है 90 साल की आयु में उसमें जुनून और जज्बा है अपने समाज की सेवा करने के लिए। तो मेरा ख्याल उनकी जीवन जो गाथा है वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे और नई पीढ़ी को ये संदेश जाएगा आज के सेमिनार से कि हमारे बुजुर्गों ने हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, हमारा जो विरसा है, इसको कैसे संजो कर और संवार कर रखा है। तो इस किस्म के जो प्रोग्राम हैं, जो सेमिनार, जो पुंछ की जो बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ की गुजरी हैं, उनके ऑनर में अगर डिग्री कॉलेज पुंछ ने ये इनिशिएटिव लिया है, जसबीर सिंह जी ने जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ जो टीम है वो ली है, इसको हम वेलकम करते हैं। मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह कुरैशी साहब को आज यहाँ पर एक बड़े वसी पैमाने पर जो आज उनको ऑनर किया जा रहा है, आने वाले समय में ऐसे और प्रोग्राम होंगे ताकि नई जनरेशन जो हमारी हमेशा
अपने बुजुर्गों से इंस्पिरेशन लेकर वो आगे अपना मुस्तकबिल में के लिए जो वो तरक्की कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका नाम? मेरा नाम सलमा आगा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज डिग्री कॉलेज में सेमिनार करवाया जा रहा है। जी, आज जो हमारे कॉलेज में सेमिनार करवाया गया उसकी थीम थी द लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिस्टर नज़ीर कुरैशी सर। अब अगर मिस्टर नज़ीर कुरैशी सर की बात करें तो वो हमारे पुंछ के मोस्ट सीनियर सिटीज़न हैं। उन्होंने लिटरेचर में हज़ारों कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं, सोसाइटी के प्रति लेकर, हमारी लोकल लैंग्वेजेस के प्रति रहकर, एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर जब वो रहे, उन्होंने अपनी सर्विस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द यूथ, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ आर डिस्ट्रिक्ट, आर स्टेट एंड आर नेशन। सो आज इस सेमिनार में उनके साथ बैठकर, उनकी बातें सुनकर, उनका लाइफ एक्सपीरियंस सुनकर, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस सुनकर बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है कि दैट वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सिट विद देम। और उन्होंने जो हमें गाइड किया है और उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं, उनका जो एंथुजियाज्म रहा है हमेशा काम करने का। इस वक्त वो नियरली 85 ईयर्स ओल्ड हैं। टुडे ऑल्सो ही स्पेयर्ड हिज टाइम टू कम टू आवर कॉलेज एंड डू मोटिवेट स्टूडेंट्स लाइक अस। ये चीज़ें हमें इन चीज़ों ने हमें प्रेरित किया है कि वी शुड ऑल्सो बी वेरी एंथुजियास्टिक। हमें अपने माइंड्स को रेस्टेड नहीं करना है। जस्ट इट इज़ सेड कि ओल्ड इज़ गोल्ड, सो डेफिनेटली ओल्ड इज़ गोल्ड। हमारे ये जो ओल्ड सिटीजन्स हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारी सोसाइटी के रिलेटेड, हमारे लिटरेचर में, हमारे नेशन के रिलेटेड उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। सो डेफिनेटली दे मोटिवेटेड अस कि वी एज स्टूडेंट्स एंड वी एज यूथ हमें भी हज़ारों ऐसी चीज़ें करनी हैं। लाइक अभी बहुत लंबे रास्ते हैं, हमें बहुत कुछ करना है अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने लैंग्वेजेस के लिए, लिटरेचर में, जिस भी फील्ड में हमें बहुत कंट्रीब्यूट करना है और आखिरी दम तक हमें करते रहना चाहिए, जिसकी लाइव एग्जांपल जो है आज ये ग्रेट पर्सनालिटीज़ हमारे कॉलेज में आए। सो डेफिनेटली आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दिस सेमिनार एंड फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ इट। इस प्रोग्राम में ज़िला पुंछ के जितने भी अदबी, सियासी और समाजी शख्सियात हैं वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। जैसे जहांगीर हुसैन मीर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, प्रोफेसर JL शर्मा साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और भी जितने भी शोरा हज़रात हैं ज़िला पुंछ के, वो इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पुंछ डिग्री कॉलेज में सेमिनार करवाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो सेमिनार हुआ है, जो हमारे नज़ीर कुरैशी साहब हैं, इस सेमिनार के हवाले से हमने ये चीज़ देखी कि जो उनकी खिदमात हैं, जो हमारे पूरे मुआशरे में, सोसाइटी में, हमारे जम्मू कश्मीर में खिदमात जो दी हैं, उसके बारे में हमें पता चला। और आज के इस सेमिनार से जो देखें आप, सबसे बड़ी चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मैं मुतासिर हुआ, वो ये है कि जो एक गैप था हमारी सोसाइटी में, हमारे बुज़ुर्गों के साथ, हमारे बड़ों के साथ बैठना, अब वो बातचीत नहीं हो पाती। एक अरसे से ऐसा हो गया कि हमारी वो जो चीज़ें हैं, वो दूरियाँ थी, वो दूरियाँ बन गई थी। पर आज वो जो गैप था वो फिल हुआ है। हमें सीखने को मिला कि इन्होंने कितनी खिदमत की है और हमारे जो बड़े थे उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। जो चीज़ें थी, सही गलत में जो फ़र्क था, फ़ैसले थे, वो लिए हैं। और जो एक उर्दू की ये जो उर्दू पोइट्री की एक बेतहाशा एक जो दुनिया है, जो ये पोइट्री है और एक जो उर्दू ये लैंग्वेज है, हमारी भाषा है, इसके बारे में भी जानने को मिला, पोइट्री सुनने को मिली और इनकी कहानियाँ, और इन्होंने बहुत ही खिदमत की है हमारे पुंछ की, स्पेशली JNK की। और उसके साथ साथ स्पेशली जो हमारा था कि आज हमारे बीच ये मौजूद है। खुशकिस्मती की बात है कि एक हमें मौका मिला हमारे बड़ों के साथ बैठने का, और हमने फुलफिल की जो आज की हमारी डिज़ाइर्स थी जानने की कि कैसे इनका सफ़र रहा इतने सालों में, आज तक यहाँ पहुँचे, इन्होंने इतनी किताबें लिखी, इतनी शायरी करी, और एक्सपीरियंस जो था वो भी हमारे साथ जो है शेयर करा। वो डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक SKC GDC पुंछ इन कोलैबोरेशन विद सर सैयद एजुकेशन मिशन सोच इंडिया। आज का प्रोग्राम जो नज़ीर कुरैशी साहब पे हमने एक सेमिनार करवाया। यहाँ पे नज़ीर कुरैशी साहब जो हैं इस वक्त खुद यहाँ प्रेजेंट हैं, और उनकी जो खिदमत थी सोसाइटी के लिए थ्रू आउट JNK की अगर बात करें या डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें, उसकी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। उनकी खिदमत को पब्लिक के बीच में, स्पेशली अपने बच्चों के बीच में लाना बहुत ज़रूरी था। और हमारा यही मकसद था इस सेमिनार के पीछे कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम किया है, उनकी खिदमत जो है, उन्होंने जो काम किया है वो पब्लिक के बीच में लाना ज़रूरी है, बच्चों के, ताकि आजकल का जो करंट जो टाइम चल रहा है, इसमें देखिए आपके बड़े और छोटे में बहुत बड़ा गैप आ गया है। उस गैप को ख़त्म करने के लिए, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को ये पता हो कि हमारे बड़ों ने क्या क्या काम किए हैं, इसलिए नज़ीर कुरैशी साहब को हमने स्पेशली यहाँ बुलाया है। और उन्हीं की खिदमत जो सोसाइटी के लिए वो पब्लिक के सामने और सिविल सोसाइटीज़ जो यहाँ बैठी हैं उनके सामने रखना ज़रूरी था। और आज के दिन
हम यही कहना चाह रहे हैं कि अपने बुज़ुर्गों, अपने बड़ों के साथ बिल्कुल जुड़ के रहिए, उनके जो काम है, उनकी जो काम है उस पर ज़रूर रोशनी डालिए। और मैं बाकी सबसे भी ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी हम ये आज तो शुरू हुआ है नज़ीर कुरैशी साहब, अब हम नेक्स्ट ये सोच रहे हैं कि के कपूर साहब वो इस दुनिया में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि उनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी और उनको कहा जाता था कि उस्तादों के उस्ताद कहा जाता था। तो नेक्स्ट हम उन पे भी करेंगे ताकि आज की यूथ ये देखे कि उनके बड़ों ने यहाँ पे सोसाइटी के लिए क्या क्या काम किया है।